Okay. Assalamu alaikum, everyone. I hope you are doing well. It's my pleasure to Alaikum. welcome you to today's insightful session. I'm Rimsha Zahir Alisha, a bioscientist researcher and your moderator of this session. Today, we have with us a highly accomplished speaker, Dr. Hina, who holds a PhD in molecular biology and human genetics. She is also an HSC approved supervisor. Her expertise in genetics and research makes her the perfect guide for today's session. The topic of today's session is genetic counseling, a field that plays a crucial role in understanding inherited conditions, guiding families, and supporting informed healthcare decisions. Without taking much of your time, I would like to invite our respected speaker, Dr. Hina, to enlighten us with her knowledge and her expertise. Over to you, ma'am. You can start your Okay, thank you. presentation. Okay. Assalamu alaikum to all. Today our topic genetic counseling where DNA meets decision. So have you ever wondered how much of your future is already written in your DNA and how much is still in your hands? This is the questions at the heart of genetic counseling. So a field within medical genetics that sites at the instructions of science, medicines, and human decisions making. So today we live in a time where a simple test can reveal our risk of conditions like blood cancers, cystic fibrosis, like deafness, osteogenesis imperfecta, and so on. But the real-time challenge is not the just understanding these results; it's deciding what to do with them. So genetic counseling is where DNA meets decisions. It helps individuals and families make sense of complex genetic informations. So, and the options we choose either the path and decide and beliefs and values. So, in this talk, we explore these things. Uh, so, what is genetic counseling? Is a process where trained professionals helps people understand how their genes may affect their health. So, what is genes? Genes is the functional basic unit that on your specific DNA. And what is DNA? DNA is your genetic information, your inherited risk for genetic conditions such as deafness. And for example, if deafness, so linked to mutations, and say for example with CIB2. And would you want to know your genetic risk? Yes or no? Okay. And what is genetic counseling? A communication process that helps individuals understand genetic risk, inheritance pattern, testing options, and supports information decisions making. So, inheritance pattern and genetic risk. What is genetic risk and what is your inheritance patterns? Either autosomal recessive, autosomal dominant, X-linked recessive, X-linked dominant, and so on. It's not just testing; it's translating complex genetic data into some thing a person can actually use. Like why it matters: early detections, preventions, family plannings, and personalized cares. This is where medicine shift from reactive to proactive, means ट्रांसलेशनल रिसर्च टाइप के आइदर आपके पास कंडीशंस हैं एंड देन यू विल डिसाइड कि आपने इन फ्यूचर क्या डिसीजन लेना है. When it is needed, family history. When is it needed? Family history, cancer risk, personal parental concerns, rare diseases, and congenital. Why genetic counseling matters? Empowerment and choice. Then explain our newest personalized when result are complex. ठीक है, we understand our options for a healthy family. And inform actions, precision medicines, family impact, personalized preventions and management.
And family impact के either family impact a healthier future for present and future generations, and why it is needed. Understanding complications के either if you have any genetic disorders, or maybe it is recessive type and dominant type के either recessive है father and mother, like say for example father is also the carrier and mother is also carrier, then what will be the chance of affectedness or carrier and normal. Say for example father is affected and carrier means single allele is affected and single one is normal, and same as in mother side. So what will be the chance for autosomal dominant, autosomal recessive, uh, and then interacting data, interpreting data के experts analysis beyond just laboratory findings, कि just laboratory findings नहीं है either कि आपका वो जो टेस्ट है और वो जो disorder है वो either chance क्या है for your percentage of your disorder. से फॉर एग्जांपल के फादर जो है वो नॉर्मल है बट मदर इज़ अफेक्टेड, और से फॉर एग्जांपल के जो पेरेंट में फीमेल साइड है वो मदर इज़ कैरियर एंड फादर इज़ आल्सो कैरियर, द चांस फॉर योर डिजीज increased, say for example 25%, and 25% will be the normal and 50% may be the carrier. Means one gene can carry two alleles, means जो genes होते हैं on our DNA, जो हमारे DNA पे genes होते हैं, सो हर जीन से एक अलील होती है जो कि आती है फॉर योर पैटर्नल साइड मींस मदर से, और एक जीन होती है जो कि आती है फादर से, मैटरनल साइड्स एंड पैटर्नल साइड दोनों साइड से। तो वो चांस हमें देखना हो रहा होता है कि कितना परसेंट है कि जो वो फादर के साइड से आ रहा है और कितना परसेंट है जो कि अम्मा के साइड से आ रहा है, मींस मदर के साइड से आ रहा है। देन जेनेटिक काउंसलिंग ब्रिज क्लियरिटी के जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है तो कितना है, एंड सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग एनजाइटी के उसको आप एज सपोर्ट करें, उसको सेफ साइड रखें थ्रू सर्टेन टाइम्स, एंड मीन्स एज योर चॉइस कि आपने आगे क्या डिसीजंस लेने हैं। अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, parental genetic counseling, pediatric genetic counseling, cancer genetic counseling, and adult and neuro genetic counseling. So, what is parental genetic counseling? Assess pregnancy as fatal risk, decision screening and diagnostic test options, provide emotional support and guidance. पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है, एवोल्यूटेड चिल्ड्रंस विद डेवलपमेंटल डिलेड बर्थ डिफेक्ट एंड अनयूजुअल फीचर्स, कोऑर्डिनेट मेडिकल फॉलोअप एंड सर्विसेज, डिस्कस रिकरेंस रिस्क इन फ्यूचर चिल्ड्रंस के आइदर अगर आपका से फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है और एज मे बी इट इज़ ऑटिस्टिक के आपको एज फॉरेन से अगर आप एज मेडिकल आपका बैकग्राउंड नहीं है, एक नॉर्मल से पेरेंट्स हैं और उनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो आप देख रहे होते हैं कि आपका चाइल्ड स्लो ली जो है वो आपको इंटरेक्शंस में है या हाइपर एक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है और पॉजिटिव हो जाता है डिफरेंट, लाइक ड्यूरिंग प्लेइंग और ड्यूरिंग वो एज ऑन योर लाइक जब वो फ्यू मंथ्स का हो रहा होता है, तो एट दैट टाइम आपने बताना होता है कि आइदर आपने होल एक्सोम सीक्वेंस या जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपका चाइल्ड एज है उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो वो फिर आपने उसको एज गाइड करना होता है। कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग एनालाइज पर्सनल एंड फैमिली कैंसर हिस्ट्री, एज के आपने हिस्ट्री कि आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रोबेंड तो नहीं वो हो और फिर हमें नहीं पता, लेकिन with the help of your genetic counseling or with the help of your टेस्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के आइदर हम उसको जेनेटिक जो है वो उसकी काउंसलिंग भी करेंगे
एज वेल एज उसको टेस्ट भी रिकमेंड करेंगे कि आइदर अगर उसका जो जीनोटाइप है वो इस लेवल का आ रहा है कि चांस 50% है या चांस उसका 25% है, आइदर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। सो एट दैट स्टेज एडल्ट एंड न्यूरोजेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, एड्रेस एडल्ट ऑनसेट कंडीशंस लाइक से फॉर एग्जांपल अर्ली ऑनसेट अल्जीमर डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज है, review neurological and cardiological risk, and explore testing and family planning options as I have discussed कि आपने उसको अगेन टेस्टिंग का जो भी है और उसकी फैमिली हिस्ट्री एज वेल एज उसकी फैमिली प्लानिंग फॉर फ्यूचर, empowering individuals and families with knowledge. Okay, say for example a case study है, a couple no symptoms, a hidden risk, both are carrier of thalassemia. Say for example couple है और they both are carriers of thalassemia. So what is carrier? Carrier means that के जो single gene है जो say for example वन साइड मदर का है, वन साइड फादर का है, जो वन साइड मदर है वो भी कैरियर है। कैरियर मीन्स के उसके पास दो अलील्स हैं, वन जिन कैन कैरी ओनली टू अलील्स, राइट। सो जो दो अलील्स हैं, एक अलील नॉर्मल है और दूसरी अलील अफेक्टेड है फॉर थैलेसीमिया। इसी तरह जो पेरेंट बी है उसके पास भी एक अलील अफेक्टेड है एंड सेकंड अलील normal है, तो they both are carrier means if they both are carrier so chance for a disease risk आपका इंक्रीज हो जाता है 25% चांस के मे बी फ्यूचर प्रोजेनी और वी कैन से दैट के पर प्रेगनेंसी जो चांस है फॉर अफेक्टेडनेस इज 25%, 50% इट विल बी अ कैरियर एंड 25% मे बी के वो नॉर्मल हो, कि दोनों अलील्स पे कोई डिजीज प्रेजेंट ना हो और वो कैरियर भी ना हो। ओके, देन केस हिस्ट्री, अ कपल नो सिम्टम्स, अ हिडन रिस्क। ठीक है, जेनेटिक इनहेरिटेंस, फादर भी कैरियर है, मदर भी कैरियर है, बोथ आर कैरियर्स। सो क्या होगा, लाइक इन दिस स्लाइड्स 25% चांस है अनअफेक्टेड, 50% चांस है कैरियर, मीन्स दोनों के पास एक सिंगल अलील जो है वो डिजीज कॉज कर रही है और सिंगल अलील बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह सेकंड जो सिबलिंग है उसके पास भी यही होगा कि वन अलील कैन कैरी डिजीज एंड अदर अलील इज totally normal, and 25% chance of severe disease means कि वो major thalassemia हो या XYZ से for example we conduct her example is thalassemia or maybe this one is for deafness or retinal pigmentosa or glaucoma, so on कोई भी disease हो सकती है XYZ। सो उसका फिर चांस इस तरह आपका हिडन रिस्क जो कि हमें नज़र नहीं आता फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली वी आर एक्टिव नाउ, बट हमारे जो ब्लड्स हैं उनमें इन जो डिफरेंट डिजीज़ हैं इसके जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इफ़ के दे आर कैरियर तो चांस 25% होता है कि फ्यूचर में वो बिल्कुल अफेक्टेड आ जाए और चांस होता है कि फ्यूचर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो। 25% chance normal, 25% chance affected, and 50% chance it will be a carrier or maybe heterozygous you can say, के means एक allele normal है and second one is affected. Genetic counseling providing clarity, not to create fear but to provide clarity. Okay, not to make decision for them but to help them make informed consent means future जो genetic counseling का एक positive point is that कि future if they are consanguineous marriages so you can protect it कि as exact जो है वो आपके first cousins ना हो, fine। if के आपके पास ये है इन फ्यूचर इंशाल्लाह और भी चीज़ें हैं बट इन फ्यूचर अब तो वैक्सीन्स भी हैं इस चीज़ की, लाइक डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे। से फॉर एग्जांपल आई का अगर आपको है आरपी है, इफ़ यू हैव आरपी देन सम जो उसकी स्पेसिफिक म्यूटेशंस हैं फॉर दैट स्पेसिफिक म्यूटेशंस यू हैव वैक्सीन्स। अच्छा जी, द मोस्ट पावरफुल इंटरवेंशन इज सिंपली नोइंग इन टाइम। ठीक है, अगर आपके पास आपको ऑन टाइम है पता और ये सब चीज़ें हैं तो यू कैन प्रोटेक्ट योर फ्यूचर प्रोजेनी। जेनेटिक काउंसलिंग प्रोसेस, फैमिली हिस्ट्री कलेक्शंस के आइदर प्रोबेंट कहाँ से स्टार्ट है आपकी फैमिली में, मे बी बिफोर 6 जनरेशन, बिफोर 7 एंड ऑनवर्ड,
Does anyone have a history of genetic conditions? A thought review of family health to identify potential risk, or we can say to identify a proband. रिस्क असेसमेंट के आइदर फादर एंड मदर कैरियर हैं, नॉर्मल हैं, या जो भी एज लाइक यू कैन सी 50% चांस है, 25% चांस फॉर अ डिजीज एंड 25% चांस फॉर अ नॉर्मल एंड 50% चांस फॉर अ कैरियर. ऑर्डरिंग जेनेटिक टेस्ट, अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम उसको ऑर्डर करेंगे कि आइदर आपका जेनेटिक टेस्ट हो, मे बी जेनेटिक टेस्ट कैन बी डन बाय ब्लड, बाय सलाइवा एंड थ्रो एमनियोसेंटियासिस. ब्लड है तो क्रोनिक विले सैम्पलिंग या क्रोनिक विले सैम्पलिंग एज यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे उसको डील करना चाह रहे हैं. अच्छा जी, a thought review of family health to identify potential risk, then calculating probabilities of disease transmissions based on genetic के either your pattern of inheritance, your transmission of disease है क्या, either autosomal recessive है, autosomal dominant है, X-linked recessive है, X-linked dominant है. Then selecting the most appropriate genetic test for the specific situations. Fine. Then analyzing and delivering results कि either lab analysis हुई, उसका जो भी एज जेनेटिक मेकअप था, जेनेटिकली आपने उसको देखा कि अलील्स को किस तरह हम मीन्स अलील्स को कॉल्स किया और देखा कि either अलील्स का पैटर्न क्या है, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है, एंड फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट हो सकता है. द रिजल्ट शो यू आर बोथ कैरियर्स फॉर बेटी थैलेसीमिया. ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये है. देन एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस एंड सपोर्ट के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ की तरफ अगर आप जाना चाहें, देन पेरेंटल डायग्नोसिस के आइदर क्या है, एंड देन अडेप्टेशंस एज यू वांट जो भी है. डिस्कसिंग रिप्रोडक्शन ऑप्शंस, सपोर्टिव केयर्स एंड इमोशनल सपोर्ट. Then making empowered choice, developing a unique plan to guide their reproductive decisions and future care. Then ethical considerations, as we have some ethical norms in genetic counseling as well, like privacy है, emotional impact है, informed consent है, and cultural sensitivity है कि आप किस उसको उस पे जाते हैं. Then myths versus facts, genetic diseases and counseling. myths क्या हैं, इट्स अ पनिशमेंट, क्रस, ब्लड का लाइक से फॉर एग्जांपल जो भी अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा रहा है या क्या, जेनेटिक डिजीज आर एस रिचुअल पनिशमेंट और कर्स. cousin marriages, sick child, it only affect large inbred families. Fine, genetic counseling is just about making you worry. इस तरह का है, if I have the genes, it's 100% fat, nothing can be done as no. Then facts क्या है, what is the facts? Genetic diseases result from variations in our DNA codes, are complex medical issues, yes. Variation exists in all populations, SNPs, single nucleotide polymorphisms. Every family has a some genetic risk, yes, for blah blah जो भी आपकी diseases हैं, different diseases के लिए genetic counseling provides support, education and clarity, not fear. ठीक है, knowing your genes empowers decisions for and मैनेजमेंट के आइदर अगर फैमिली में कुछ है या पास्ट में आपके ब्लड में कुछ इस तरह के जर्म्स कुछ फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है स्किपिंग ऑफ जनरेशन्स हो जाए कि आपकी टू और सिंगल जनरेशन में वो चीज़ें नहीं अपेयर हों, लेकिन फिर थ्री और टू और वन जनरेशन उसको जो है वो क्रॉस करके एंड देन आपको कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर्स मिल जाता है मे बी. सो यहाँ पे ये चांस ऑफ चांस पॉसिबल है कि मे बी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू एपिजेनेटिक्स भी मे बी आपकी इन्वॉल्व हो, और आइदर आपका जो है वो ये डायरेक्ट जेनेटिक्स ही हो. दे बोथ आर लाइक इन्वॉल्व, कुछ भी हो सकता है. टेस्टिंग इज ओनली फॉर फाइंडिंग प्रॉब्लम्स. फाइन, जो जेनेटिक आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आइदर आपको है क्या और उसका लेवल क्या है, उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, आइदर ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर सेकंड वन है. अच्छा जी, काउंसलिंग लीड्स टू फोर्स मेडिकल एक्शंस. से फॉर एग्जांपल काउंसलिंग डिक्टेट डिसीजंस फॉर लीड टू मेडिटरी इंटरवेंशंस के अदर आपने क्या आगे डिसीजंस लेने हैं या क्या है.
देन फैक्ट्स क्या है कि टेस्टिंग प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव ऑप्शंस, आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता है, आपकी माइंड क्लियरिटी हो जाती है और फ्यूचर एस्पेक्ट आपको क्लियर हो जाता है कि इधर आपके साथ में अगर कॉन्सेंजीनियस मैरिजेस चली आ रही हैं ख़ानदान से रिवाज दर रिवाज जो होता है, तो उसमें फिर आपको क्लियरिटी होती है कि आपको किस तरह जाना है और किस पाथ पे जाना है। फाइनल डिसीजंस तो खैर अल्लाह पाक के ही होते हैं, अल्लाह सही की ही हैं, लेकिन फिर भी precision medicines, genetic information adds targeted treatments, yes, cost and like whole exome sequencing है उसकी तरफ आप जा सकते हैं, cost and accessibility, price are dropping, testing it become accessible, आजकल testing as इतना नहीं रहा जैसा बैक पे था, testing offers a clear map of information for proactive health management, काउंसलिंग रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी, लाइक आपको एक यू हैव टू बी 100% कॉन्फिडेंट कि आइदर मैंने किस तरह जाना है और मेरे ब्लड की जो जीनोटाइपिंग है वो किस लेवल की है फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज़ जो कि इफ़ के आपकी फैमिली हिस्ट्री में चली आ रही है या फिर वो ऐसा कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो जो कि जेनेटिक के साथ में इन्वॉल्व होके और एज कोई एपिजेनेटिक रिजल्ट है, देन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि अदर मैंने किस डायरेक्शन में डिसीजन लेना है। फ्यूचर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाती है, इन्फॉर्म्स करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस कि आपको होता है आइडिया कि से फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया मेजर है जो कि आपकी फैमिली में रन कर रहा है, तो फिर यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि अदर आगे जो प्रोजेनीज हैं उनमें हमने किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, मैरिजेस हैं तो वो कॉन्सेंजीनियस हैं और नहीं हैं, they both involve. Empowering a career in genetic counseling, the career journey from educations to impact education path. Say, for example, bachelor degree, biology, genetics, psychology, or related, masters in genetic counseling, board certifications, key skills and competence, medical knowledge, communication and in pathway, ethical reasoning, critical thinking and analysis. Third one, what a genetic counselor does. Family history collections as pedigree analysis. What is pedigree analysis? Means जो आपकी family history है as जो probablement से आपकी disease start हो रही है back of your 3 4 5 6 7 generations के जहाँ से जो भी आपका disorder start होता है as जो like पहले बहुत like हमने तो देखा है जो आपका शुजरा नस्ब as pedigree जो आपकी होती है फैमिली ट्री जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई डिजीज़ है या कुछ भी इस तरह का है तो उसके अकॉर्डिंग देन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स के अदर कोई रिजल्ट्स हैं तो उनको इंटरप्रीट करना, उसका जीनोटाइपिक लेवल देखना, उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देखना एज जेनेटिकली कि अदर ये किस लेवल पे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ है, then patient education and support, fine, then guiding reproductive and health choice के either आपने किस डायरेक्शन में जाना है, देन फोर्थ वन वर्क सिटिंग्स के हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेशंस हो सकती हैं, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकती हैं, देन कैरियर इम्पैक्ट एंड ग्रोथ, एम्पावरिंग पेशेंट्स विथ नॉलेज, ड्राइविंग एडवांसेस इन precisions medicines, then continuing educations and achievement, genetic counselor as a part of the care team, yes, then the value of knowledge a key career outcome. अच्छा जी, is there any questions about genetic counseling or okay, what are the patterns, what are the alleles and so on, so please I would love to hear your thoughts, please continue. Here is someone asking, can we Yes. identify future risk of cancer before it actually happens by any medical test? And if yes, that what medical test? What medical test? You can do whole exome sequence. If you do whole exome sequence, then you can see the different mutations के either cancer means जो भी part of your body है, so you can detect it. Okay, here is next question.
What are some genetic tests we must take before marriage? Name some. It's a like say for it's a huge questions, not some genetic test. It means if you are cousins, then you should do test like genetic test. Say for example, if in your family, say for example some disorders running ना, means कि अगर आपकी फैमिली में कुछ कोई ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और वो रन कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक म्यूटेशन, से फॉर एग्जांपल डेफनेस है, so you can do test for some common mutations for deafness. से फॉर एग्जांपल इफ कैंसर्स के कुछ ऐसी हैं और देन रन करें, देन यू कैन डू टेस्ट फॉर specific mutations for cancers, or maybe you can do whole exome sequence, then you can identify. Okay, All thank right. you, Miss. Here is next question. Yes, Miss Can I Rimsha, go ahead. okay? So can I ask the question? Did you understand? Uh, can I ask the question? मुझे आप Yes, सवाल yes, कर yes, दूं? you can. ओके सो मेरा सवाल ये है कि ये जो जेनेटिक काउंसलिंग है, ये कितने Yes. ये जो इसका स्कोप है वो कितना है आजकल के दौर में? मतलब कितने लोग उस चीज़ को फील्ड को जानते हैं और कितने लोग पेशेंट्स आते हैं, अंदाजन के लोग जिसके पास जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बता सकती हैं? as we are in पाकिस्तान, so यहाँ पे तो as अप्रॉक्सी कोई 50 से 60% हमारे पास होंगे जो इस चीज़ को एज अवेयरनेस हो। सिंध लेवल पे तो बहुत ही कम है। आप पंजाब साइड पे देखें तो वहाँ पे है, एज लोग कंसर्न कर रहे होते हैं ना। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री देखते हैं तो वहाँ तो आप किसी भी से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है और आपका चाइल्ड 2 और 1.5 लाइक ईयर या 2 इयर्स 2.5 का है, देन वो आपको फ़ौरन से होल एक्सोम सीक्वेंस टेस्ट जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। बट इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो इसका 50% राउंड अबाउट 50 to 60% है, इससे ऊपर नहीं है। वो भी बहुत, मैं आप समझे, मैं आपको बहुत जो है वो अपर लेवल का आपको बता रही हूँ ना, अदरवाइज वी आर नॉट अवेयर अबाउट जेनेटिक काउंसलिंग ना, कि जेनेटिक काउंसलिंग एक्चुअल है क्या। अगर जेनेटिक काउंसलिंग हो तो फिर ये जो हमारे पास इतने जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, आप सिंगल लेवल पे देखें तो हर दूसरी गली में आप देखें कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड आपको नज़र आ रहा होता है ना, या कोई भी ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर, से फॉर एग्जांपल डेफनेस है, ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा, रेटिनल पिगमेंटोसा, ग्लाकोमा और सो ऑन। सो आपको नज़र आ रहे होते हैं। इसके जेनेटिक काउंसलिंग हो तो मैं समझती हूँ कि ये कंसंजीनियस मैरिजेस कम हों, कॉमन म्यूटेशंस के जो पीसीआर हैं, कॉमन म्यूटेशंस जो डिजीज़ेज़ हैं वो थोड़ी स्टॉप हो जाएँ, और मतलब वी कैन वी कैन चेंज, वी कैन रेवोल्यूट इट if के जेनेटिक काउंसलिंग हो एक्चुअल में। थैंक यू सो मच मिस हिना फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। थैंक So, यू सो मच। अच्छा, कोई सवालात हैं जो कि अभी कमेंट बॉक्स में आए? कमेंट Miss, am I audible? या Kindly off your mic when Miss Ina addressing the question. ऑल राइट, एक्नॉलेज। Yeah, thank you so much. Miss Hafsa, please read out the question. okay, sure, sir. Miss Hina, here is next question. When a patient's Yes. choice could ha- when a patient's choice could harm a future child, do you still remain completely neutral, or is there a point where neutrality becomes unethical? Not it's not possible, means normally done के से फॉर एग्जांपल मैं समझती हूँ कि ये अनएथिकल तो नहीं है, इथिकल है। एज कंसर्न होता है जो भी चाइल्ड है। देखें, पेशेंट्स अगर आपका आ रहा है, ठीक है, मतलब जो भी है एक्स वाई जी, तो ऑब्वियसली उसके अपने कंसर्न हैं, वो आप जो उसको डील कर रहे हो वो इथिकल नॉर्म के अकॉर्डिंग डील कर रहे हो, ठीक है। इफ़ आप उससे हट जाते हैं देन मे बी कि ये हो, अदरवाइज यू कैन डू इट।
It's not unethical, according Okay, to thank you me. for जी जी. okay, thank you for the clarification. Here is next question. Ma'am, is there any role of multiple alleles in this process? देखिए मल्टीपल अलील्स तो इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है. मीन्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप देखें तो वहाँ पे आपके मल्टीपल अलील्स इन्वॉल्व होते हैं. अदरवाइज जो आप नॉर्मली डील कर रहे होते हैं किसी भी जेनेटिक डिजीज़ के लिए या जेनेटिक डिसऑर्डर ऑर्डर्स के लिए, एज आई सेड कि वन जीन कैन कैरी ओनली टू अलील्स, मींस वन फ्रॉम योर मेल पेरेंट्स एंड वन फ्रॉम योर फीमेल पेरेंट्स. मींस हमेशा जब भी आप देख रहे होते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, टू पेरेंट्स हैं, तो उसमें से एक अलील आपकी अब्बा की तरफ से आ रही होती है, एक अलील आपकी अम्मा की तरफ से आ रही होती है. मींस अगर के वो अफेक्टेड है या नॉर्मल है, आइदर इन अदर केस के आप फिर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे हैं कि आइदर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, जो भी है एक्स वाई जी, वो आपकी एक अदर कंडीशन है. लेकिन ये है कि वो दोनों अलील्स में से ही मींस फ्यूचर प्रोजेनी जो डिसाइड हो रही है. से फॉर एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो चांस पर प्रेगनेंसी फॉर अफेक्टेडनेस 50% होता है. से फॉर एग्जांपल अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो चांस पर प्रेगनेंसी 25% होता है आपके पास, और 50% चांस है कि आपका कैरियर हो, 25% चांस है कि आपका नॉर्मल हो. और जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं या मल्टीपल अलील्स इन्वॉल्व हैं वो फिर वो स्पेसिफिक आपके हैं डिसऑर्डर्स ना. Okay, okay, ma'am. Thank you for the clarification. Here is next question. How does a counselor maintain non-directiveness when a patient's cultural or religious beliefs conflict with life-saving medical tests? एज मेडिकल टेस्ट तो है, अब वो ऑब्वियसली हर किसी के डिसीजंस पे डिपेंड करता है ना कि आइदर वो किस लेवल का लाइक सोच रहा है या थिंक कर रहा है. अदरवाइज आई थिंक कि मेडिकल टेस्ट तो यू कैन डू इजीली. लाइक आपका ब्लड सैंपल ही जा रहा है ना, अब ब्लड सैंपल में क्या इथिकल नॉर्म्स या इस तरह की कोई कंडीशंस हो रही होती हैं. आप सिंपल ब्लड टेस्ट एक दफ़ा आप लेके तो देखें, देन यू विल मेक डिसीजन इन फ्यूचर के आइदर हमें करना क्या है या किस डायरेक्शन में जाना है. एटलीस्ट आप ब्लड टेस्ट तो लें. ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं जा रहा होता. नॉर्मली जैसा आपका आरबीसीज का टेस्ट है, आपने उसके लिए ब्लड दिया, इसी तरह आपका पेरिफेरल ब्लड जाता है फॉर जेनेटिक टेस्टिंग. वो फिर काम लैब का और जो भी आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो उसका काम है कि वो किस तरह उसको टेस्ट कर रहा है. अदरवाइज यहाँ तो जस्ट आपका ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड है तो आप उसको दे सकते हैं. देयर इज़ नो इशू. You can do Okay, it that's it. easily. Thank Yes. you. Okay, here is the next question. Do you think genetic disorders will become completely curable in the future? Sorry, in the end क्या कहा आपने? Genetic disorder? Completely curable in the future? No, it. I think never, never ever. अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ऐसा नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर को हम कम्प्लीटली देखें. जेनेटिक डिसऑर्डर्स में नंबर ऑफ म्यूटेशंस इन्वॉल्व होते हैं. कोई भी डिसऑर्डर हो, एक्स वाई जी, आइदर वो डेफनेस हो या से फॉर एग्जांपल कोई कैंसर है और TP53 जीन इन्वॉल्व है, ठीक है. तो कोई भी एक, से फॉर एग्जांपल सलाइवरी कैंसर्स अगर हमें कंडक्ट कर रही हूँ, या लिवर जो है वो कैंसर कर रही हूँ, या कोई भी ऐसा कैंसर, से फॉर एग्जांपल आप सिलावरी कैंसर उठा लें कि जो सिलावरी सेल से है, तो उसमें भी देखें नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होंगे. मैं जो पेशेंट से फॉर एग्जांपल कर रही हूँ उसके लिए से कि TP53 जीन मैंने उठाया फॉर कैंसर, ये तो एक जीन है. अगर आप ब्राका देखें, BRCA1, BRCA2 और नंबर ऑफ जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स. फाइन. तो अगर मैंने कोई सिंगल एक जीन उठाया है, उसको कवर करने के लिए उसको पूरा उसका सीक्वेंस और जो भी इंफॉर्मेशन है, या से फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट स्निप्स देखना चाह रही हूँ, SNP, तो उसके लिए भी टाइम एज रिक्वायर्ड हो रहा होता है. तो वो आप जस्ट फॉर अ सिंगल जीन म्यूटेशंस आप होल डिसऑर्डर को कवर नहीं कर रहे हो. नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व हैं. या तो आप डायरेक्ट होल एग्जाम सीक्वेंस पे चले जाओ तो उसकी भी जो रिजल्ट्स है उसको रीड आउट करने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है. सो आई डोंट थिंक सो कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कंप्लीटली क्योरेबल है इन फ्यूचर. मुझे नहीं लगता. देयर इज़ अ रिस्क. मतलब लाइक आप कंप्लीटली नहीं कर सकते. हाँ, आप नंबर ऑफ म्यूटेशंस के, स्पेसिफिक म्यूटेशंस के PCR एज रन ऑन कर सकते हैं इन फ्यूचर.
लेकिन कंप्लीटली इसको, हाँ एक एक चीज़ है कि हम ये कर सकते हैं कि हम जीन एडिटिंग कर लें या क्रिस्पर टेक्निक को यूज़ कर लें, मतलब क्रिस्पर केस 9 को, कि आप कोई भी स्पेसिफिक, लेकिन वो भी यही होगा कि कोई भी आप स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन से, फॉर एग्जांपल डेफनेस है तो डेफनेस, इन डेफनेस देयर आर मोर देन 300 जीन्स आर इन्वॉल्व, फाइन, तो आप किसी भी एक जीन के लिए क्रिस्पर 9 अप्लाई करेंगे तो फिर जो 399 299 जीन्स स्टिल रिमेनिंग मीन्स ऑफ फॉर अ सिंगल पेशेंट, तो हमें नहीं पता, इसके लिए हमें एक बहुत डिटेल्ड सिनेरियो और ये सब चीज़ें, टू मच टाइम कंज्यूमिंग टोटली, तो क्योर करना, आई थिंक सो कि थोड़ा राइट नाउ जो सिचुएशंस हैं उन सारी चीज़ों को फ्यूचर में मे भी कुछ ऐसा नया आए कि हम उन टेक्निक्स को अप्लाई करके कुछ और नया कुछ फ्यूचर में निकाल सकें, तो अदरवाइज लेकिन राइट नाउ जो हमारे पास सिनेरियोज हैं, जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, जो हमारे पास स्किल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग टोटली क्योर करना इट्स टू मच परप्लेक्सिटी फॉर अस रिसर्चर. Yes, I surely agree with you and get your point. Here is next question. What advice would you give to someone who wants to become a genetic counselor today? Genetic counselor, yes. Obviously, first of all, you have to do any masters, MPhil or BS degree जो भी है, और PhD. Then फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिग्री आपकी सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए. अब सब्जेक्ट में अगर डिग्री है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आप कर लें, या आप इवन फॉरेंसिक की तरफ जाएं, तो भी आप फ्यूचर में जेनेटिक काउंसलिंग कर ही सकते हैं. आप इन सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं. एज आपका ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ क्लियर होना चाहिए और आपके पास डिग्री होना चाहिए, देन यू कैन बिकम अ जेनेटिक काउंसलर. Okay, here is और someone asking. पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इफ यू वांट टू डू एग्जैक्ट लाइक कि आपने मतलब अपना 100% देना है, देन यू कैन डू BS और MS और PhD इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स. Okay, thank you. Here is next question. If a patient refuses to tell their family about a serious genetic risk, should you still keep it a secret? No, I think you should explain all these, like जो भी circumstances हैं, you have to discuss. Then secret रखने का तो कोई as नहीं बनता. मीन्स आप उसको वो जो आपका कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी, लाइक आपके वो मीन्स शुड आई से, लाइक अगर आपका कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई प्रोबैंड नहीं है. व्हाट डज इट मीन बाय प्रोबैंड? कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका थैलेसीमिया है, मतलब फ्यूचर में जो भी चाइल्ड है वो थैलेसीमिक आ गया है और पास्ट हिस्ट्री में कुछ नहीं था ऐसा. तो अब ये हो सकता है कि आप उसको लेकर के, जो उसकी और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि जो आपका मेडिकल बैकग्राउंड बन रहा है, आप उन चीज़ों को कवर करें, कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसे विटामिन और ये सब सारी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को कवर करें. अगर कोई ऐसा एनवायरमेंटल रिस्क आ गया, या से फॉर एग्जांपल कोई अनसर्टेन चाइल्ड आ गया है एज ऑटिस्टिक है, जो कि हमारे पास कॉमनली ये इशू एज हमारी सोसाइटी में रन है कि हर दूसरी गली में आपको एक ऑटिस्टिक या जेनेटिक से रिलेटेड डिजीज़ चाइल्ड आपको मिल रहा होता है. तो इसमें यही है कि आप अपने फैक्टर्स जो हैं, डिफरेंट मेडिकल इश्यूज जो हैं, उनको कवर करें साइड में. सेकंड ये कि अगर आपकी फैमिली में कुछ नहीं है ऐसा, तो उन चीज़ों को मीन्स आप कोई भी कॉमन म्यूटेशंस की PCR ले सकते हैं, जो कॉमन कॉमन डिजीज़ हैं और जो हमारे पास पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं. डेफनेस के लिए हैं, थैलेसीमिया के लिए, सो नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस के हैं. अगर आपको ऐसा कोई रिस्क एज चांस ऑफ चांस लगता है कि आपकी पास्ट फैमिली में नहीं था, लेकिन अगर एनीमिक मदर है या और इस तरह के डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, देन यू कैन टेक कॉमन टेस्ट, so you can Okay, minimize thank you. the risk. Okay, thank you so much for the clarification. Here is next question. Someone is asking that I have heard about amniocentesis. Is it being done in Pakistan or not yet? Yes, amniocentesis is done in Pakistan.
इट्स अ वेरी कॉमन एंड आई थिंक ये तो कोई बहुत बहुत टाइम पहले से हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा मतलब कॉमन है। आप देखें कैरियोटाइपिंग में आप जाके देख लें कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं उसमें आपका एम्ब्रियोसेंटियासिस फ्लूइड ही लिया जा रहा होता है और फिर उसका कैरियोटाइप लगा के आप बता रहे होते हैं कि आइदर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, आइदर डाउन सिंड्रोम है, टंडन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है या लाइन फिल्टर है, तो वो फिर आप जेनेटिक मतलब उसकी अगर डिसऑर्डर्स में लाइक उसको कोई ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आ रही है तो मतलब वो आप उसको रिजल्ट दे रहे होते हैं। ये तो बड़ा कॉमन है फिश टेक्निक और कैरियोटाइपिंग। Okay, thank you. Here is next question. How the epigenetics have impact on the genetic level? How the epigenetic have impact on the genetic level? Yes, epigenetic is also involved in genetics, but genetic is first factor, then environmental factor is involved, then you can say it is epigenetic। मीन्स एज आई सेड कि अगर आपकी फैमिली में किसी भी डिजीज़ को लेकर के कोई ऐसा प्रोबेंड मौजूद नहीं है, इट मीन्स इट इज़ एपिजेनेटिक, कि आपका जेनेटिक फैक्टर तो था मतलब जो भी है वो सुप्रेस फॉर्म में था, लेकिन जब उसको एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा मिला जिसने उन चीज़ों को एक्टिव कर दिया, उन जीन्स को स्विच ऑन कर दिया। मीन्स जो देखे ना, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो भी है ये आपके डीएनए पे है और डीएनए को डील्स कौन कर रहा है, हमारे जीन्स कर रहे हैं। तो जीन्स को भी एक्टिव होने के लिए वही सारे एनवायरनमेंट, वही मॉलिक्यूलर का कैस्केड रिक्वायर्ड हो रहा होता है जो कि उनको स्विच ऑन कर देता है। अब वो चीज़ें क्या होती हैं, वो आपके ज़रूर आपका एनवायरमेंटल सेल का एनवायरनमेंट एज जो एनवायरमेंटल फैक्टर हम बात कर रहे हैं वो आपकी बॉडी और सेल्स के, उन सेल्स को वो अगर चीज़ें नहीं मतलब रिसीव हो रही हैं तो वो एज एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर जीन्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बाबा इसको टर्न ऑन करो स्विच को, तो वो टर्न ऑन होकर और वो आपको एज कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या ऑटिस्टिक आपका कोई चाइल्ड आपको सामने नज़र आ रहा होता है कि बाबा ये ऐसा हो गया। लेकिन पास्ट फ्यूचर मतलब पास्ट में आपको कोई ऐसी एज इंफॉर्मेशन नहीं हो रही होती कि आपको कोई भी 7 6 या 9 जनरेशन तक आपको कोई ऐसा प्रोबेंड नहीं मिलता। अब प्रोबेंड कैसे मिल रहा होता है, ऑब्वियसली आपसे फॉर एग्जांपल आपके अब्बा ने आपको बताया कि भाई बिला बिला जो आपके दादा थे वो से फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड थे, और या बताया कि भाई आपके जो दादा के भाई थे मतलब परदादा बिला बिला जो भी रिलेशनशिप बन रहा है, तो वो कोई एक्स वाई जी डिजीज या कलर ब्लाइंडनेस के लिए अफेक्टेड थे, तो वो एज राइट नाउ डिजीज्ड हैं, वो हयात नहीं है, मीन्स वो लाइव नहीं है, डिजीज्ड है पेडिग्री में। बट आपके पास इंफॉर्मेशन है और कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके पास, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। मीन्स जो जेनेटिक काउंसलर है वो यही सारी चीज़ों को कवर कर रहा होता है, एक अच्छा जेनेटिक काउंसलर, कि वो ऐसा नहीं कि वो हम यहाँ रह रहे हैं और वो हमारे दादा अमेरिका में रह रहे थे तो वो अब हमारी फैमिली पेडिग्री में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं बाबा, वो इन्वॉल्व हैं आपकी पेडिग्री में, आपकी इन्फॉर्मेशन में है, उससे फिर आप पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस और ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड आउट कर सकते हैं। Okay, thank you for the explanation. Here is next question. From which specific test we identify the genetic variation? From which specific test we identify the genetic variation? There is a whole exome sequencing as well as Sanger sequencing as well as whole genome sequencing. The whole genome sequencing and whole exome sequencing, the main difference is that कि होल जीनोम सिक्वेंसिंग में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है बॉडी की। आइदर आपकी बॉडी में जो जीन्स हैं उनके पास दो पार्ट होते हैं, एक को हम एक्सॉन्स कह रहे होते हैं, एक को हम इंट्रॉन्स कह रहे होते हैं। तो एक्सोनिक और इंट्रोनिक दोनों टाइप की म्यूटेशंस आपको होल जीनोम सीक्वेंस में मिलती हैं। होल एक्सोम सीक्वेंस में जस्ट आप एक्सोनिक म्यूटेशंस जो कि आपके एक्सॉन्स पे हैं, जो कि आपके कोडिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी जीन्स के, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जा रही होती है। और जो सेंकर सीक्वेंसिंग है उसमें अगर आपको पता है से फॉर एग्जांपल कि आपके कोई भी पार्टिकुलर डिजीज़ है और उसकी एज म्यूटेशन आपको पता है कि भाई से फॉर एग्जांपल TP53 में है, अगर आपका कैंसीरियस एज कोई पेशेंट है या फिर आपका कोई डेफनेस का पेशेंट है तो वो CIB2 JGB2 या फिर कोई और जो है वो SLC की कोई ऐसी म्यूटेशंस आ रही हैं या ILDR की आ रही है, मीन्स नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर उसके लिए आप जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई ठीक है इस म्यूटेशंस के लिए इस जीन का सीक्वेंस आप कर लें। तो आप सीक्वेंस में क्या देख रहे होते हो कि आइदर आपको पता चल जाता है से फॉर एग्जांपल CIB2 के लिए है तो इंस्टीड ऑफ थायमाइन आपके पास साइटोसाइन है एट द पोजीशन ऑफ, मतलब अब ये थोड़ा सा डिटेल बात हो जाएगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का चेंज आपको बता देता है कि यहाँ यहाँ इस जीन में ये डिफेक्ट है, दैट्स वाई यू आर अ डेफ और डम।
Okay, thank you. Here is the next question. What are the biggest global challenges biotechnology can solve? What are the biggest global challenge? यस देखिए ना, अब यही जो होल एग्ज़ाम सीक्वेंस है ये कर लिया है हमने, क्लोनिंग की तरफ हम जा रहे हैं, डिफरेंट जीन्स कर रहे हैं। क्रिस्पर-9 इज़ द बेस्ट वन। क्रिस्पर-9 जीन एडिटिंग प्रोसेस जो है ये हमारा एक्सीलेंट जा रहा है, और इस पे जीन थेरेपी लेवल पे हम आ गए हैं। एज़ आई सेड कि मुझे स्पेसिफिक म्यूटेशंस राइट नाउ नहीं याद है, बट आरपी पे हमारा मतलब काम इतना हाई लेवल तक हो गया है कि हमने उसकी वैक्सीन्स डेवलप कर ली हैं। फ्यूचर में ऑब्वियसली अदर डिसऑर्डर्स, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उन पे काम चल रहा है बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में विद कोलैबोरेशंस। तो उसमें इंशाल्लाह और भी बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे जिनके लिए वैक्सीन्स आ जाएंगे। एज़ वो बहुत कॉस्टली हैं राइट नाउ तो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें अवेल होने लग जाती हैं ना। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह और बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे जिन पे राइट नाउ काम चल रहा है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह गुड रिजल्ट्स होंगे। Yes, inshallah, sure. Should we take further questions or it's getting late? Yes, you can ask. I have Okay, time. okay, that's great. Here is question: how the food affect cause genetical disorder? Sorry, voice, please ask again. Yes, I am asking how the food affect cause genetical disorders. How the food? फूड एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स को तो नहीं कर रहा होता। फूड क्या अफेक्ट आपको करेगा? एज आई सेड कि फूड ऐसे अफेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और उसको आप से फॉर एग्जांपल वो एनीमिक हो रही है या क्या है, तो फिर कुछ ऐसे जो ब्लड रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसमें एज अफेक्ट आ जाए। एज डायरेक्टली फूड कोई जेनेटिक उस पे नहीं आपका कर रहा होता, बट चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू मी डायरेक्ट नहीं होगा ऐसे। मतलब Okay, इसके लिए एक पूरा टाइम से फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट से प्रोटीन्स लिए ही नहीं है, तो हो सकता है बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाए। आप समझ रहे हैं? आपका प्रोटीन का बिल्कुल लो डाइट है, बिल्कुल ही लो डाइट है, आपने स्टार्ट से एंड तक कुछ नहीं लिया। मीन्स ये पूरा मतलब एक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है एज जीन्स या जो भी है उनको टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होने के लिए। ऐसा नहीं कि बस मैंने 2-4 दिन या हफ्ता या महीना कुछ नहीं किया और आपका जेनेटिक रिजल्ट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। okay, I get the point. Here is next question: how has next generation sequencing changed genetic counseling? यस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग चेंज जेनेटिक काउंसलिंग, कि अगर आपके पास सीक्वेंसिंग है और आपको एज चेंज पता है, से फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक म्यूटेशंस के लिए, एज आई से अगेन मैं CIB2 का नाम लूंगी ताकि इस मतलब एज मुझे नहीं पता, हम बहुत सारे ऐसे होंगे जो नॉन मेडिकल भी होंगे हमारी कम्युनिकेशन में, मीन्स ये जो ग्रुप हमारा है राइट नाउ। तो आपका जो भी स्पेसिफिक जीन है, से फॉर एग्जांपल CIB2 से कि इसकी आपको एक जो इसके एक्सॉन नंबर 4 पे म्यूटेशन है 272 वाली, अगर आपको पता है कि एज जो डेफनेस का चाइल्ड है और उसको इसी जीन के रिलेटेड यही स्पेसिफिक म्यूटेशन है, देन तो ये चीज़ आपको जो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फेवरेबल है। लेकिन अगर आपको नहीं ये नहीं पता राइट नाउ, तो फिर उसके लिए आपको डिफरेंट जीन्स करने पड़ेंगे, बट ये हेल्पफुल है। आपको एज डिटेक्ट हो जाता है कि आपके कौन से न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे या कौन से प्रोटीन फोल्डिंग में, या जो हम जेनेटिक लैंग्वेज कह रहे होते हैं हमारा कोडॉन जो होते हैं, तो उसके किस न्यूक्लियोटाइड पे जो चेंज आ रहा है जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर है आपके आपको। Okay, thank you for the explanation. Here is next question: when should a person consider genetic counseling? व्हेन शुड अ पर्सन कंसीडर जेनेटिक काउंसलिंग? एज अगर आपको रिक्वायर्ड है और मतलब आपको लगता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री या फ्यूचर में जब आप ले रहे हैं, एज यू आर एजुकेटेड, देन यू शुड टेक जेनेटिक काउंसलिंग। ये तो एक अच्छी चीज़ है ना, अच्छी मतलब एक पॉजिटिव साइन की तरफ इम्पैक्ट है, तो यू कैन टेक। Okay, thank you.
या अगर आपकी फैमिली में आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे जेनेटिक इश्यूज चले आ रहे हैं लाइक अबाव अजदाद से फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया मेजर है, देन यू शुड टेक जेनेटिक काउंसलिंग के आइदर कोई फ्यूचर प्रोजेनी में भी तो चांस नहीं बन रहा फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट, so you should take genetic counseling. Okay. Here is next question. How do you handle cases where religious beliefs strongly oppose abortion, but even if the condition is severe? देखिए एक तो ये होता है कि आपका बिलीफ कितना जा रहा है ना, हम अल्लाह साईं पे बिलीव कर रहे होते हैं, ठीक है, और फाइनली लाइक हमारी जेनेटिक्स जो है वो भी एक लिमिट पे रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, देन हम यही कहते हैं कि जो हमारा बिलीव है वो फाइनल डिसीजन अल्लाह साईं का ही होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोसोमल रिसेसिव को यहाँ पे कंसीडर करें कि एक पेरेंट कैरियर है, सेकंड पेरेंट भी कैरियर है, ठीक है, दोनों कैरियर हैं, मेटिंग है, चाइल्ड पर प्रेगनेंसी क्या है, 25% चांस है फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव कि आपका चाइल्ड अफेक्टेड हो फॉर दैट स्पेसिफिक डिजीज, एज वेल एज 25% चांस है कि आपका चाइल्ड जो है वो नॉर्मल हो, मीन्स पर प्रेगनेंसी चांस है, मीन्स फाइनल डिसीजन अल्लाह साईं का है कि वो कौन सा डिसीजन लें। हमारा जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो भी कह रहा है कि भाई 25% चांस है, मेंडल, ठीक है, जॉर्ज मेंडल, और एज हमारी जो मतलब नॉर्मल मैं भी यही कहूँगी, अगर आप जेनेटिक काउंसलर या किसी भी XYZ से आप जाके कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी भाई ऑटोसोमल रिसेसिव अगर फेनोमेना मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन ली और पेडिग्री आपकी ड्रा की तो राइट नाउ मैं आपको एज पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस तो बता सकती हूँ, ठीक है, मैं डिजीज का मीन्स में जीन्स की जो जीनोटाइपिक लेवल है वो मैं ऑन स्टेशन लैब वर्क या रिसर्च जो भी आपका हो रहा है वो आप लैब स्टेशन पर ही उसको फाइनल कर सकते हैं, लेकिन ऑन योर क्लिनिक जेनेटिक काउंसलर क्लिनिक यू कैन ड्रा योर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑन पेडिग्री, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल आपका जो केस निकल रहा है वो निकल रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव का, तो उसमें चांस है, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई 25% चांस है फॉर डिजीज अपेयरेंस, 25% चांस है फॉर योर नॉर्मल, और 50% चांस है फॉर योर कैरियर, मीन्स एक जीन नॉर्मल, एक अलील नॉर्मल है, एक अलील कैरियर है, बट फाइनल डिसीजन अल्लाह साईं का ही होता है कि हो सकता है आपको 4 चाइल्ड है और पर प्रेगनेंसी जो 25% चांस नॉर्मल वाला आ रहा है वो चारों बच्चे आपके नॉर्मल हो जाएं, तो फाइनल डिसीजन तो अल्लाह साईं का ही है। जेनेटिक्स भी हमारी एक लिमिट तक बताती है हमें परसेंटेज, और उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन जो भी है। Yes, sure. Exactly, it happens. I really agree with you. Here is next question. What trait do you think is most influenced by genetics? आई थिंक ऑटोसोमल रिसेसिव मोस्टली कॉमन, और फिर ये एज ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज ना डियर, ये डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक डिसऑर्डर क्या जा रहा है, मींस ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, रिसेसिव है, हमारे 5 डिफरेंट जो है लाइक ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड वाई लिंक्ड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल आल्सो बाय मदर। सो ये सारे डिपेंड करते हैं कि आपका डिसऑर्डर कौन सा है, से फॉर एग्जांपल कॉन्जेनाइटल डेफनेस है, कॉन्जेनाइटल जो है वो कैटरेक्ट है, कॉन्जेनाइटल ग्लाकोमा है, कॉन्जेनाइटल ओपन एंगल ग्लाकोमा है, ब्ला ब्ला, नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स है ना। सो ये डिपेंड्स करता है ऑन योर डिजीज, हम फाइनली किसी उसके लिए नहीं कह रहे होते हैं, हम डेफनेस में कहेंगे एक्स लिंक्ड है, ठीक है, नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व हैं, मोर देन 300 जीन्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप ग्लाकोमा या कैटरेक्ट की तरफ चले जाएं तो हो सकता है उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाए, तो ये फिर वेरी करता है डिजीज बाय डिजीज। डिड यू Okay, अंडरस्टैंड? thank you. जी Here जी। is the next question, ma'am. Yes, I get your point. Exactly. ओके, Ma'am, if a couple comes and they both are carrier for the same disease, so what step they should take? They want, they both want to get married. दे बोथ वांट टू गेट मैरिड, ठीक है, अच्छा देखें, जब उन्हें ये पता है कि दे बोथ आर कैरियर फॉर सेम डिजीज, ठीक है, तो उनको डिजीज नेम भी पता होगा। अब से फॉर एग्जांपल कि वो किसी भी डिजीज को लेकर के हैं, से कि कोई कैंसर, खुदा ना खास्ता, खैर कोई जो है वो से कि डेफनेस के ही लिए है ना, तो अब अगर उन्हें ये पता है कि फॉर दैट स्पेसिफिक डिजीज है कैरियर,
तो वो उसकी स्पेसिफिक म्यूटेशंस की जो है ना वो कर लें, मतलब कॉमन म्यूटेशंस की पीसीआर करवा लें बिफोर मैरी, तो उसमें ये होगा कि एटलीस्ट उनको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि इस स्पेसिफिक म्यूटेशंस के लिए है, तो वो फिर शायद उसको क्योर कर सकते हों। मीन्स उसके लिए उनको थोड़ा वर्क ऑन करना पड़ेगा कि उसको लेके जाएं कि हो सकता है उस स्पेसिफिक म्यूटेशन की कोई हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास आरपी के लिए डिफरेंट वैक्सीन्स हैं कि अगर किसी को कॉन्जेनाइटल रेटिनल पिगमेंटोसा है, देन दे के टेक दिस स्पेसिफिक वैक्सीन, एंड वो जो है वो उसको उस स्पेसिफिक, अगर उसी स्पेसिफिक म्यूटेशन के लिए है R34 या जो भी है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है राइट नाउ, तो वो अगर उसके लिए है तो वो उसको इनहेबिट कर सकती है। वो उसको क्या करेगा, उसको साइलेंट कर देगा, जिन नॉकआउट कर देगा, वो स्पेसिफिक जो वैक्सीन है। इसी तरह अगर दो जो पर्सन हैं द बोथ आर कैरियर फॉर दैट स्पेसिफिक डिजीज और उस डिजीज की वैक्सीनेशन मौजूद है, तो 100% सिक्योरिटी के साथ उनका फ्यूचर चाइल्ड नॉर्मल होना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चांस है 25%, एज ऑटोसोमल रिसेसिव हुआ ना, अगर बोथ आर कैरियर है, कि 25% चांस है कि उनका चाइल्ड अफेक्टेड हो, बट एज वेल एज 25% चांस ऑफ अफेक्टेडनेस देयर इज अ चांस ऑफ नॉर्मल। सो मे बी उनके 4 या 8 जो भी बच्चे हों वो सब के सब नॉर्मल हों। इन माई पास्ट एक केस था कराची का, थैलीसीमिया मेजर, मीन्स दे बोथ वर कैरियर। सो उनके 9 मतलब थे सिबलिंग्स थे वो 9, और वो सब के सब थैलेसीमिया मेजर। सो मतलब ये अल्लाह साईं पे ही डिपेंड करता है, बस अल्लाह साईं की अता है कि अगर इवन आपकी फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर है भी, तो भी ये आपका अपना बिलीव भी है, और आप दुआ कर सकते हैं कि हो सकता है सारे के सारे नॉर्मल ही आ जाएं, इवन कैरियर भी कोई ना हो, चांस तो है ना पर प्रेगनेंसी। Okay, I get your point. Here is next question. Why is that huge number of kids nowadays cannot talk or they even have talk issues, even though parents are healthy? वही बात है कि बोथ पेरेंट्स आर हेल्दी, ठीक है, एपिजेनेटिक इन्वॉल्व है ना, ठीक है। देखे ना कि हर वही वाली बात है, मैं शायद थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ टाइम ये बात रिपीट कर रही हूँ कि हर दूसरी गली में आपको ऑटिस्टिक चाइल्ड मिल रहा होता है। वो रीज़न इज़ दैट कि हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व है। आप जो फूड ले रहे हैं, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि फूड क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो ऐसे डायरेक्ट फूड नहीं, लेकिन आप कंटिन्यूसली वो चीज़ें आपकी डाइट में शामिल हो गई हैं ना, कंटिन्यूसली आप वो चीज़ें जो है वो, मतलब लाइक जंक फूड है और ब्ला ब्ला इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप एनेमिक हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है, इस तरह की चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑटिस्टिक और इस तरह के डिसऑर्डर्स में चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, और वो एपिजेनेटिक इन्वॉल्व हो रही है आपकी, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट टोटली चेंज होता होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, तो वो चीज़ें फिर इन्वॉल्व हो रही है। यस, दैट इज़ राइट, कि आपका जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ जो किड्स हैं वो आपके इश्यूज को डील कर रहे हैं। और फिर ये भी पॉसिबल है, मे बी मैं समझती हूँ उस चीज़ में एक तो एपिजेनेटिक भी इन्वॉल्व है, एज वेल एज जेनेटिक ऑल्सो इन्वॉल्व है हमारी, कि हमें हमारा प्रोबेंट पता ही नहीं है। मीन्स देखें ना कि जब से अगर हम इस चीज़ को इस कॉन्सेप्ट को अगर रखें सामने, कि जब से लाइक ये चीज़ें जो चली आ रही हैं, तो ज़रूर हम कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं से मैट कर रहे होते हैं ना, तो वो ज़रूर हमारे ब्लड में वो जर्म्स उस स्पेसिफिक डिजीज़ के छुपे होते हैं, और जैसे ही उसको वो एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट कर रहा होता है, तो वो एज रिफ्लेक्ट होके आपको एक डिजीज नज़र आ रही होती है। जिसे देखें ना कि डीएनए ही है, मैं समझती हूँ डीएनए ही है हमारा, मतलब लाइक एज एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि क़यामत के दिन जो है वो हम अपने सेम उसके साथ में 10 मिनट है मेरा जो है वो होंगे, तो वो हमारा डीएनए ही है ना, कि एज आप देखें ना कि अगर फॉरेंसिक एनालिसिस आप देख लें उसमें, तो आप मतलब 10 12 13 साल पुरानी जो बॉडी है, और उसको आप एज उसका आप जो है वो जेनेटिक मेकअप बता रहे होते हैं कि आइदर ये कौन से एलील किससे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और आप उसका क्राइम सीन जो भी हो उसका XYZ, और आप उसके रिजल्ट दे Hello, रहे होते हैं, तो वो greetings आपका डीएनए everyone. ही होता है ना। Miss Safsa, am I audible? Yes, या sir, you are audible. Okay, is all answer questions done? यस, थैंक यू। Yes, almost done.
Okay, thank you so much. Thank you so much, everyone, all participants, for your actively participation in that webinar. And I would like to extend my gratitude to Dr. Hina Sheikh uh, for joining and for giving insightful session on genetic counseling. I really appreciate your time and your efforts in the field of genetic career counseling as well. Uh, yeah, thank you so much for your time. Thank you so much, Ms. Rimsha, for your time and your contribution in that webinar. Yeah. And also, I would like to thank all organizing team, Ms. Afsa Sarfraz, uh, Vice President, White on International Alliance for Sciences, Mr. Mansoor Ul Haq, Deputy Director, Social Media Unit at White on International Alliance for Sciences, and Ms. Aisha, General Secretary at Vaitanova International Alliance for Sciences, and Ms. Sira Khalid from University of uh, Lumps University uh, at Jamshoro. Uh, Thank you so much, everyone, for your participation, your contributions, and stay active in the group for future collaborations, future opportunities, and further, if anyone have any questions, I will share you the email of Dr. Hina Sheikh. You can share your question on email as well, and you can directly share your question on our email as well. Thank you so much, everyone, for your active participation again. And if I talk about the certifications, soon after verification, you will get your e-certification. Stay updated and best regards. Thank you so much again. Over to the course, the organizing team, and speaker and audience. Best regards, Ghulam Murtaza, CE and President at Vaitanova International Alliance for Sciences. Ms. Hafsa, up to you. Thank you. Thank you so much, sir. I really appreciate your words, and I am also thankful to our guest speaker and the host, and all the participants and the organizing team who are still here at the end. And I know it's getting too much late, so now we are going to end. If you guys have still any queries, you can reach out any one of the admins. We will surely address your questions. Also, we are going to share the email of the speaker. You can directly ask to the speaker. Thank you so much, Miss Sina, once again. So now it's time to say Allah Hafiz. Thank you so much, Miss Sena. If you want to give final remarks to the audience, I would like to invite you. Thank you so much, Dr. Hina. Dr. Hina, you are muted. Thank you so much. It was a very nice session. Thank you so much. Thank you again. Have a nice day to everyone, and bye bye. Take care. Okay, Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz, everyone.